So today in this video we will be discussing about the excretory system of cockroach. So not wasting any time, directly going into the basic points of the excretory system. Why I have started from the excretory system, you might be wondering, because respiratory system has yet not been discussed, but I have checked the arthropoda's video, and in that video I have seen that while talking about the respiratory structures of different arthropods, we talked about gills, we talked about book gills, book lungs, and also there we talked about the tracheal system. So hence we have already discussed tracheal system, so saving time not discussing it over here, because it would be the same thing again saying it over here. So tracheal system, you can watch it from the video of arthropoda, and here I am continuing the cockroach section. So today we will be discussing about some important parts of cockroach. So in this video we will cover up the excretory system, nervous system, these things, sensory system, and reproductive system. I will discuss it in one single video. So here in excretory system you can see that the first type of excretion that is shown by these animals, we are discussing one of the major type. Okay, in the body of cockroach there are several cells or there are several systems, you can say, which helps them in order to do the respective excretion. But among all those systems, what are those systems we will study gradually, but among all those systems, the highest contribution, the highest removal of metabolic waste is done by whom? It is done by Malpighian tubules. And in the digestion portion, alimentary canal जब हम लोगों ने पढ़ा, in that video we have got about Malpighian tubules, how this Malpighian tubules looks like. These Malpighian tubules are in direct connection with the blood, as their body cavity has blood present in it, open circulatory system. Malpighian tubules are present in the junction of midgut and hindgut, ये भी हम लोग को मिला है. There are some numerous thread-like structure which projects out from that junction. Okay, what that tubule does, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. It absorbs the metabolic waste, that is sodium and potassium urate granule from the blood, and converts it into uric acid, okay, inside it, and then dumps it into the hindgut पोटी के साथ बाहर. ये हम लोगों ने ये सब पढ़ा है. तो थोड़ा यहाँ पे कैरेक्टर, मतलब थोड़ा नोट टाइप का यहाँ पे दिया है, because Malpighian tubule ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है. So they are fine, long, unbranched. Unbranched, that means they are not jointed. Okay. Thread like, obviously thread like था, हम लोगों ने देखा है. Yellowish, something new. 100 to 115 numbers. Blind tubules. Blind tubules because ये जो ऐसा करके है, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है. अगर यहाँ पे कोई ओपनिंग होता, यहाँ पे अगर ऐसा मान लेते हैं ये Malpighian tubule है, यहाँ पे अगर कोई Malpighian tubule का ओपनिंग होता तो उसको हम लोग ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स या ब्लंट ट्यूब्यूल्स ये सब नहीं बुलाते हैं. यहाँ पे ये जगह है क्लोज्ड, so it has a blunt or blind end attached to the alimentary canal at the junction of midgut and hindgut, ये हम लोगों ने देखा है. Lying freely in the hemolymph, ये भी हम लोगों ने देखा है. Each tubule is lined by brush border cuboidal cells. Smart. ये जो ट्यूब्यूल है Malpighian tubule, इस Malpighian tubule का आउटर लाइनिंग में क्या बोला जा रहा है, इस तरीके का कुछ सेल्स प्रेजेंट है इसके आउटर लाइनिंग में. ये जो सेल है, ये सेल में इस तरीके का कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है. न्यूक्लियस है सेंटर में, टिश्यू चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है. इस तरीके का सेल जिसका न्यूक्लियस सेंटर में हो एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये क्या सेल हो सकता है? इट इज ऑब्वियसली ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल्स. क्यों ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल सेल Malpighian tubule के लाइनिंग में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट देयर बिकॉज वी नो दैट दिस Malpighian tubule, it comes in direct contact with the blood. माने this cell will come in direct contact with the blood, and by coming in direct contact with the blood, what does it do? It absorbs some metabolic waste from the blood. Blood has sodium and potassium urate granule, so from the blood sodium and potassium urate granule is absorbed. So there has to be a cell which will do this function of absorption. Who is that cell? This is that cell. And what is this cell? Brush border cuboidal cell. Okay. They absorb nitrogenous waste products from the blood. Okay. Converts them into uric acid. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. ये ब्लड से सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल ये सेल एब्जॉर्ब करके अंदर डालेगा. अंदर सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, some salts and water. Okay, which is excreted out through hindgut. Then Malpighian tubule dumps those
यूरिक एसिड इनटू द हाइंड गट एंड एक साथ पोटी के साथ बाहर, हेंस कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। ठीक है, कॉकरोच का मेटाबॉलिक वेस्ट इज यूरिक एसिड, हेंस they are called as uricotelic. Organism which secretes uric acids are called as uricotelic animals. हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो हम लोग को क्या बुलाया जाएगा? यूरियोटेलिक. If there are some animals which has the ability of secreting directly ammonia, they will be called as ammonotelic. ठीक है, ये सब आगे मिलेगा. This name Malpighian tubules, why did we give Malpighian? ये नाम क्यों दिया? Because Marcello Malpighi described these tubules. So for the first time, who described these tubules? Marcello Malpighi was the name of that person who described these tubules, hence gave these tubules or kept the name of these tubules on this person's name called as Marcello Malpighi. So this is the first type of excretory system which does the major function of the removal of excretory products. Now there are some other systems, or you can say other cells, which also does excretion but in little bit different type of excretion. Now what are those cells and what is that different type that they do? We will study it now. Okay, make notes. So here we are talking about the remaining 3 excretory system which I told you, and as I have said that the remaining 3 excretory system will have a different sort of mechanism. So what is their mechanism? See, these are basically some cells, some organ present inside the body, and this cell and this organ obviously will come in contact with the blood as the circulatory system is open. So whenever the blood is going to come in contact with these respective cells that I have written, cells or organ, whatever I have written over here, these cells or the cells of these organs are going to absorb the metabolic waste from the blood, just similarly the Malpighian tubule does. Okay, Malpighian tubule also, whenever it comes in contact with the blood, it absorbs sodium and potassium urate granule from the blood. These cells or the cells of these organs, whenever will come in contact with the blood, it will absorb the metabolic waste from the blood and it will convert that metabolic waste inside it into uric acid. यहाँ तक सेम है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को उठा के अपने अंदर यूरिक एसिड बनाता है, ये लोग भी बनाएगा. बनाने के बाद मेल्फिजियन ट्यूब्यूल कैन रिलीज दैट यूरिक एसिड इनटू द हाइंड गट. They do not do that. They will convert the thing into uric acid and they will store it inside them. Okay, they will store it inside them. So they are taking out the metabolic waste from the blood, but they are storing it inside them with some tolerance. अभी तुम लोग का दिमाग में आ सकता है कि सर अगर ये सेल मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर कर लेगा तो ये लोग का खुद का कोई हैम्पर नहीं होगा क्या? नहीं होगा. दे हैव दैट एडेप्टेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द यूरिक एसिड इनसाइड देम विदाउट हार्मिंग देमसेल्व्स. ओके, सो ये कौन कौन करता है वो देख लेते हैं. फैट बॉडी डज स्टोरेज एक्सक्रीशन, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड. अभी क्या है समझते हैं. फैट बॉडी आर बेसिकली द एडिपोसाइट्स, द एडिपोस सेल्स. और एडिपोस सेल्स हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे. कहाँ पाया जाता है? पैकिंग कर रहा होगा कहीं पे इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन, और इन बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गन. जो खाली स्पेस है हमारा, जो ये इंटरनल बॉडी वॉल है, ये इंटरनल बॉडी वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोमक है ना. तो स्टोमक और हमारा जो ये बॉडी वॉल है उसके बीच का एक गैप है. ठीक है, स्टोमक एंड पेनक्रियास, ऑर्गन एंड ऑर्गन के बीच में एक गैप है. इन सब गैप को फिलअप करता है कौन? फैट बॉडी. सो कॉकरोच के बॉडी में भी फैट बॉडी सेम ही काम कर रहा है. इट इज फिलिंग अप द ऑर्गन. सो वेयर इट विल बी प्रेजेंट? द एडिपोस सेल्स, फैट सेल्स व्हिच लाई बिलो द बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल के नीचे और बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है, कैन एक्यूमुलेट, प्रोड्यूस, कैन एक्यूमुलेट माने कैन कलेक्ट द सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट ग्रेन्यूल फ्रॉम द ब्लड, प्रोड्यूस एंड स्टोर, एंड आफ्टर कलेक्शन इट कैन प्रोड्यूस यूरिक एसिड एंड स्टोर यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रेन्यूल्स थ्रू आउट द लाइफ. जब तक इस सेल का लाइफ है, हर सेल का एक लाइफ होता है. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी है, द आरबीसी हैज अ लाइफ ऑफ 100 to 120 days. Is not it? So every cell in our body will have some life. So whatever is the life of this particular cell, ये throughout its life ये अपने अंदर यूरिक एसिड को स्टोर रख सकता है without getting damaged in itself. It has that tolerance. This type of mechanism where the cells has the ability of absorbing metabolic waste from the blood, converting metabolic waste into uric acid
and then storing that thing inside it till it life goes. Because life जब खत्म होगा तो फेगोसाइट्स आएगा, आके इस सेल को खा लेगा और इस सेल के साथ यूरिक एसिड को भी खा लेगा, खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज द रोल ऑफ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स जो हम लोगों ने लिखा था ब्लड में, ठीक है कि नहीं, हेमोलिम्फ में फेगोसाइट्स आर प्रेजेंट। उसका काम क्या है? जब भी बॉडी का कोई भी सेल मर जाएगा, उस डेड सेल को बॉडी से हटाना, सेल डेब्रिस, डेड सेल, इन सबको बॉडी से हटाना। कैसे हटाएगा? डाइजेस्ट कर जाता है। इस सेल के पास इतना एबिलिटी है कि ये एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाएगा। सपोज कोई पकड़ लो, कोई एपिथेलियल सेल हमारे बॉडी के अंदर का मर गया, ठीक है ना, तो जैसे वो सेल मरेगा, द ब्लड का जो हमारा फेगोसाइट्स है, इट विल गो नियर बाय दैट सेल, इट विल एब्सॉर्ब दैट सेल एंड इट विल ईट इट, कंप्लीटली डाइजेस्ट इट, ठीक है। दैट इज हाउ फेगोसाइट्स वर्क। तो ये वाला सेल जब मरेगा, फेगोसाइट्स आएगा, इस सेल को एनगल्फ करेगा, एमीबा जैसे एनगल्फ करता है, जैसे एनगल्फ करेगा करके इस सेल को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसके अंदर जो भी चीज स्टोर है वो भी तो खत्म हो रहा है। सो दैट इज हाउ दिस mechanism works, and this mechanism is called as storage excretion. This is called storage excretion. Okay, same mechanism is also exhibited by two more cells. One is called as nephrocytes. ये nephrocytes क्या है? Nephrocytes is a cell which is found, you can say, nearby the heart. बहुत सारा बुक ये भी बोलता है कि नेफ्रोसाइट्स जो है उसका हार्ट के पल्सेशन के साथ कुछ लेना देना है। दैट इज, हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, एलरी मसल्स मेक्स दैट पल्सेशन ऑफ द हार्ट। सो अलोंग विथ एलरी मसल्स, okay, along with Ellery muscles, if there is any other cell which is responsible for maintaining the pumping of the heart, maintaining the pulsation of the heart, तो Ellery muscle के साथ nephrocyte is also equally responsible, ऐसे माना जाता है। तो these are some cells which are large, colorless, ovoid। पूरा सेल का कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है। लार्ज साइज में, कलरलेस, कलर नहीं, ओवॉइड, ओवेल, बाइन्यूक्लिएट, अंदर में दो न्यूक्लियस है, सेल्स अटैच्ड टू दी, देखो कहां प्रेजेंट है, डोर्सल डायफ्राम, बिकॉज़ डोर्सल डायफ्राम वाज द सेपरेशन बिटवीन पेरिकार्डियल एंड पेरीविसरल। तो पेरिकार्डियल पेरीविसरल समझ में आ रहा है कि नहीं, हार्ट के आसपास हो रहा है कि नहीं, तो डोर्सल डायफ्राम में ये प्रेजेंट है। प्लस लेटरल साइड्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट हम लोगों ने ड्रॉ किया था 13 चेंबर, उस 13 चेंबर के लेटरल साइड में प्रेजेंट है, वहीं पे प्रेजेंट है जहां पे एलरी मसल था। फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी थोड़ा सा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। स्टोरेज एक्सक्रीशन लिख दिया, मतलब ये भी स्टोरेज एक्सक्रीशन करता है, ठीक है। यूरिकोस ग्लैंड, दिस इज अ ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ मेल। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में डिस्कशन है, मशरूम ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मेल का एक्सक्लूसिव ग्लैंड है। उसी मशरूम ग्लैंड का एक हिस्सा है ये यूरिकोस ग्लैंड। सो बेसिकली मशरूम ग्लैंड हो या मशरूम ग्लैंड का एक छोटा सा हिस्सा यूरिकोस ग्लैंड हो, ये दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। एंड कॉकरोच में हमको पता है कॉकरोच आर व्हाट, दे आर यूनिसेक्सुअल, इज नॉट इट, दे आर डायोशियस, दैट मींस मेल फीमेल सेपरेट। तो सिर्फ मेल कॉकरोच के बॉडी में ये ग्लैंड पाया जाएगा। ये ग्लैंड भी स्टोरेज एक्सक्रीशन शो करता है। ये ग्लैंड भी अपने अंदर यूरिक एसिड को कन्वर्ट करके बना के स्टोर करने का एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 का डिस्कशन। एक और छोटा सा डिस्कशन है एक्सक्रीटरी सिस्टम रिलेटेड, वो ये है, इसी में मैं कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पोस्ट करके नोट बना लेना। डिस्कशन में कर देता हूं, नोट में लिख दूंगा। हमको पता है जो निम्फ होता है, निम्फ दैट इज द यंग वन ऑफ कॉकरोच, जब एग हैच होगा तो एग के अंदर से जो निकल के आएगा उसको हम लोग निम्फ बुलाते हैं, व्हिच इज द यंग वन ऑफ कॉकरोच। उस निम्फ को 13 मोल्टिंग करना पड़ेगा टू बिकम एन एडल्ट। मोल्टिंग के बारे में भी मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा में डिस्कस किया है कि मोल्टिंग कैसे होता है। तो हर मोल्टिंग में जो कॉकरोच है, जो निम्फ है, वो हर मोल्टिंग में वो क्या करेगा, वो अपने बॉडी का जो एक्सटर्नल या यू कैन से आउटर मोस्ट कवरिंग होगा बॉडी का, उसको शेड कर देगा। दैट इज ओनली दिस, इज नॉट इट, दैट इज ओनली व्हाट मोल्टिंग मींस, दैट व्हेन द इंसेक्ट्स शेड देयर एक्सोस्केलेटन। तो ये जो निम्फ है, इस निम्फ का अंडा से बाहर निकल के आया निम्फ, निम्फ के बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। वो निम्फ जब मोल्टिंग करेगा तो वो अपना एक्सोस्केलेटन को छोड़ देगा एंड बाहर निकल के आके एक नया एक्सोस्केलेटन बनाएगा। फिर एक मोल्टिंग करेगा, फिर इस एक्सोस्केलेटन को छोड़ देगा, बाहर आएगा, फिर एक नया एक्सोस्केलेटन बनाएगा। दैट मींस एवरी मोल्टिंग में ये इंसेक्ट अपना क्या कर रहा है, एक्सोस्केलेटन, आउटर मोस्ट लेयर, इसको क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो जो निम्फ है, वो निम्फ ऐसा करता है कि ब्लड से निम्फ का जो एक्सोस्केलेटन है, उस एक्सोस्केलेटन में एबिलिटी है कि जब भी वो एक्सोस्केलेटन बॉडी के फ्लूइड माने बॉडी का ब्लड के कांटेक्ट में आएगा
द एक्सोस्केलेटन ऑफ निम्फ, निम्फ मैं बोल रहा हूं, याद रखना, एडल्ट नहीं, निम्फ का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें एक एबिलिटी है कि वो जब भी ब्लड के कांटेक्ट में आएगा वो ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को उठा के अपने बीच बीच का जो स्पेस होगा, exoskeleton is made up of chitin, so there can be some spaces present between the two chitin molecules or like that, है ना। तो exoskeleton में जहां जहां पे भी there are खाली स्पेसेस प्रेजेंट है वहां पे मेटाबॉलिक वेस्ट को डिपॉजिट करेगा, एंड एवरी टाइम जब ये निम्फ मोल्टिंग करेगा तो ये अपना एक्सोस्केलेटन को शेड कर देगा, और उस एक्सोस्केलेटन के साथ उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट को जमा किया था वो भी तो निकल के जा रहा है। समझ में आया? तो दिस इज लिटिल बिट, क्या बोलूं, ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है निम्फ का, क्योंकि एडल्ट जब हो जाएगा तब ये फीचर कंप्लीटली चला जाता है। सिर्फ वो ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ निम्फ टू एडल्ट उसमें ये फीचर उनका रहता है। तो जब जब वो लोग एक्सोस्केलेटन में मेटाबॉलिक वेस्ट डिपॉजिट कर सकता है, एंड एवरी टाइम निम्फ मोल्टिंग करेगा, एक्सोस्केलेटन को छोड़ देता है, उस एक्सोस्केलेटन को जो छोड़ दिया उसके साथ क्या निकल के चला गया, मेटाबॉलिक वेस्ट भी उसमें रह गया, उसमें निकल के चला गया। दैट इज द मैकेनिज्म। ठीक है, वो मैं भी लिख देता हूं, तुम लोग इसका नोट। सो यहाँ पे तुम लोग को वो नोट्स लिख दिया है जो क्यूटिकल में लिखा था। Some metabolic waste materials are deposited on the cuticle of nymph which are eliminated during molting. सिंपल में लिख दिया है। इसको अगर ब्रॉडली जो भी तुम लोगों ने समझा है उसके अकॉर्डिंगली लिखना है तो यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज इन अ प्रॉपर वे। ओके, नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, एंड इन नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच वी विल गेट दैट देयर नर्वस सिस्टम runs mid ventrally. We know that नॉन कॉर्टेक्स का नर्वस सिस्टम वैसे भी वेंट्रली रन करता है, हमारा डोर्सली रन करता है। ठीक है, रन्स मिड वेंट्रली along the longitudinal axis